Okay, so hi guys. Thank you for being here. Uh, I'm Shubham Gautam. I'm the GDSC lead of GDSC RTO Kota. And in this session, we'll be talking about Git and GitHub. For this session, Khushbu will be taking this session. She'll be walking you through Git, GitHub, how to use them, making pull requests, creating repositories and all these things that you need to know in the context of Git and GitHub. So also, should you have any questions, you should post them in there's a channel called Q&A here. You can just put in your questions and we'll just answer them accordingly. Okay, so from now, Khushbu is girls at tech lead at GDSC RTU. So now Khushbu will be taking over. Over to you, Khushbu. Yeah, thank you, Ross. Hi, everyone. Good evening. I'm Khushbu, and welcome to the session about Git and GitHub. So I think we have enough participants now, so we shall start, right? Um, okay, so before we go into any technical stuff, first I would like to give you a brief introduction about what Git actually is. राइट सो बेसिकली व्हाट गिट इज हम जैसे ही डेवलपमेंट वर्ल्ड में एंटर होते हैं तो द फर्स्ट थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम सीखते हैं या जो हमें सीखनी चाहिए वो होती है गिट और आज के टाइम पे एज अ डेवलपर इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ गिट you might face a lot of problems which may include you not being able to keep a track of your project, or they could also be you not being able to keep a track of your collaborators, like who made what changes in your project. So therefore Git is a very important tool every programmer or every developer should know. So basically, let me share my screen first. Right, is it visible? Yes, it is visible. Okay, thank you. So basically, what Git uh, is Git is a version control system basically. So here I have a Wikipedia definition of a version control system, which says that a VCS is a management software responsible for managing changes to computer programs. Now, managing changes is an important term. We'll come to it later. Documents, large websites, or other collection of information. इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े स्केल में फैल गया, वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और आपने ऑन द वे उस प्रोजेक्ट में काफ़ी एडिट्स किए, यू मेड इट बेटर, जैसे कि प्ले स्टोर में हमारे ऐप्स में अपडेट आता है ना, सो द वर्जन इंक्रीजेस, तो आपके प्रोजेक्ट के काफ़ी वर्जन्स बन गए। तो सपोज आप इस वक्त अपने प्रोजेक्ट के वर्जन 20 पे हो, राइट, और आपको अचानक से ऐसा लगता है कि यू वांट टू गो टू द वर्जन 10 ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड यू वांट टू रिव्यू सम फाइल्स। तो अगर हम बिना वीसीएस के ये करना चाहें तो इट वुड बी अ वेरी हार्ड टास्क, बिकॉज इतने सारे वर्जन्स की इतनी सारी फाइल्स को कलेक्ट करके सिस्टमैटिक वे में रखना इज नॉट एन ईजी थिंग। बट विथ VCS इट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज VCS का काम ही होता है, ये आपके प्रोजेक्ट में आपने अभी तक जितने चेंजेस किए हैं, जितने मॉडिफिकेशंस किए हैं, जितने एडिट्स किए हैं, उन सबका एक लॉग ये अपने पास रखता है, उन सबको ट्रैक करता है ये। अगर हम इसके एडवांटेजेस के और डिटेल्स में जाएं तो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ईजी टू रिकवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो मैंने जैसा पहले बताया आपको, आप अपने प्रोजेक्ट के वर्जन 10 से वर्जन 20 से वर्जन 10 में बहुत सिंपली जंप कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू टू गो बैक एंड रिव्यू द फाइल्स और फोल्डर्स ऑफ एनी ऑफ योर प्रीवियस वर्जन्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट। Number next is it informs us about who, what, when, why changes have been made. Now suppose आपके प्रोजेक्ट में 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 people are contributing to your project and they are all around the world. Now it could be a very hard task for you to keep a track of किसने कहाँ पे कौन से changes किए, right? हो सकता है किसी आपको rectify करना हो,
तो आपको पता करने में बहुत टाइम लगेगा कि किसने कहाँ पे चेंजेस किए थे। पर VCS उसका भी लॉग रखता है, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू नो, सपोज एट सम पॉइंट आपको पता करना है कि ये चेंज कब हुआ और किसने किया, तो दैट विल बी वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ VCS. Third point is employees or contributor of the project can contribute from anywhere, irrespective of the different geographical locations through VCS. So what this means is the criteria for people to collaborate with you on your project is not limited by the physical distance between you and your collaborator. People can be all around the world and they can still collaborate with you. ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो कोलैबोरेट कर रहा है आपके प्रोजेक्ट में उसको आपके पड़ोस में ही रहना पड़े, राइट, ताकि आप उससे इजीली कम्युनिकेट कर पाओ. People can be all around the world and you can still easily collaborate with them. So basically, what version control system, or this is what Git is. Before we move further, I would like to introduce a term to you which we will be using throughout the session, and that is a repository. So what basically is a repository? Repository कुछ नहीं है, it's just a fancy word for a folder. किस तरह का folder? A folder where all the files and folders related to your project resides. Now repository can be of two types. Repository, first of all, repository or repo are same thing. Repo is like the short form for repository. I'll be using repo. So there are like two types of repos: local repo and central repo. So what is a local repo? अगर आप the repository which contains all the files and folders of your project, if it is in your local device, that is your laptop or your desktop, then it is a local repo. Or a central repo is when your repository resides on a server. Say GitHub. GitHub is also a server, AWS, or it could be on Google server. Then it would be called a central repository, right? So this is clear. Now, before we move any further and go ahead and start learning about how do we use Git, first of all, you'll have to download it. Since it is already downloaded in my device, I won't be downloading it again, but I'll be providing you with a link from where you can download it. And once you are done downloading it, we'll move forward, right? So let's just move forward step. Okay, so here we are. Now, first of all, you have to go to a particular location where you want your project folder to be. आप जहाँ पे चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पे बने, आप अपने डेस्कटॉप पे उस लोकेशन पे चले जाइए. फॉर मी इट इज़ माई डेस्कटॉप. मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पे एक प्रोजेक्ट बनाऊँ. तो आई जस्ट गो टू माई डेस्कटॉप एंड आई राइट क्लिक. व्हेन आई राइट क्लिक, सिंस हमने गिट इंस्टॉल कर लिया है, तो विल हैव अ टर्मिनल कॉल्ड गिट बैश इन विंडोज. If you are on Ubuntu or Mac OS or say Linux, you will just have to open your terminal, right? So I'll open my Git bash, click on Git bash here, and a Git bash terminal will open. So it's something like this. Let me just increase. Okay. So this is a Git bash terminal. Now, since you are using Git for the first time, you'll have to do a one-time configuration, right? Why is it required? Because आप जब भी अपनी कोई repository बनाओगे, तो Git को पता कैसे चलेगा कि उसको किस यूजर के अंडर में repository बनानी है. So you'll have to tell Git कि इस यूजर के अंडर मुझे एक repository बनानी है. Therefore you'll have to configure it, right? So for configuration, my Git is already configured. So there are basically two commands to configure. I'll write them down in the chat box. Someone from my team will. Command is, right, before you configure though, sorry, before you start configuring, please make sure that you have a GitHub account. You have to go to github.com. If you don't have an account, you can sign up. Since I already have an account, I'll just sign in. And once you make an account on GitHub, you can go ahead and start doing the configuration, right? So there are two commands for configuration. First command is git config hyphen let me just type them, global user.name.
and then you'll have to put two inverted commas, and in between them you'll have to write your username, your GitHub account username, right? And the next command is, I won't press enter because I have already configured. The next command is user.email, right? So in this you have to write the email which you have used in your GitHub account. Once you are done with this, you are finally configured and we will be ready to move ahead. Since I've already configured, so let's just move ahead to the next step. The next step would be to make a project folder. Now, since we are making a project, obviously we would want to make a folder in which we'll like add all our files, right? So we can just go to our desktop screen, right click, new folder, right? We can do it like this using GUI. But since we are using the command line, we'll use commands to make a folder. So what is the command to make a folder? The command is mkdir, which stands for make directory. आप लिखेंगे mkdir and then उसके आगे space and then you'll have to write the name of the folder. So for me it will be git project. मुझे मेरे फोल्डर का नाम चाहिए git project, so I'll write git project and then I'll press enter, and you can see here a folder called git project has been created, right? Now we want to move inside this folder. Why? Because obviously हम जो भी files create करेंगे वो हम इस folder के अंदर create करेंगे, right? तो हमें इस folder के अंदर move करना है. So what we can do is command होती है cd. cd stands for change directory. Now directory is again directory again means a folder in Linux language, right? Linux की भाषा में folder को. So we'll write cd change directory and then we'll write the name of the folder we want to go inside. तो हमें जैसे git project के अंदर जाना है, I'll write git project and then I'll press enter. तो यहाँ पे as you can see ये जो आता है ये एड्रेस आता है हमारा कि हम अभी कहाँ पे है. तो it says OneDrive desktop git project. So that means we are inside git project now, right? Now since I've created a folder and I have moved inside that folder, I'll open my text editor and I'll open the same folder inside it as well. मैं VS Code यूज कर रही हूँ. आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर जिससे भी आप कंफर्टेबल है जिसके साथ भी you can use that. I'll open my project folder in my text editor and okay, so here is my folder and it is empty, right? We can see. तो अब हम इसमें फाइल्स बनाना स्टार्ट करेंगे. देयर आर टू वेज आप फाइल कैसे बना सकते हो. सपोज मुझे अपने टेक्स्ट एडिटर से ही फाइल बनानी है, राइट? तो आई क्लिक ऑन न्यू फाइल and I'll suppose I want to make a file called demo.txt, right? And I'll press enter. तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी demo.txt, right? This is our file. So suppose I write something inside it like hi, this is a random file, right? And then I'll save. अब सपोज ये तो हमने GUI की यूज करके एक फाइल बना ली. सपोज हमें कमांड लाइन का यूज करके बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कमांड होती है touch. You'll write touch and then you'll write the name of the file you want to make. तो सपोज मुझे अब एक index.html करके फाइल बनानी है, so I'll write index.html and then I'll hit enter and we'll go to our text editor and we can see कि index.html नाम से एक फाइल जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है. So I'll open it and here we have our file. तो मैं इसमें एक HTML देती हूँ, right? And suppose मैं इसमें h1 heading ऐड कर लेती हूँ hello world. And then I'll save it. So we have created two files. Now we want to convert our folder, our project folder, which is Git project, into a Git repository. So why do we want to do that? Because जब तक हम अपने folder को Git repository में convert नहीं करेंगे, Git will not be able to track our project.
वो उनको ट्रैक नहीं कर पाएगा बेसिकली, इसलिए हमें उसको एक रेपोजिटरी में कन्वर्ट करना जरूरी है. Now, there could be two ways by which we can convert it into a repository. Creating a Git repository, there are two ways, right? Initialize your own local repository, or you can clone a remote repository, right? So, what does this mean? Initialize your own local repo. This means that if you're starting a project from scratch, suppose आपने अपना एक project start किया from like बिल्कुल starting से, तो you can initialize your own repo. पर अगर आप किसी दूसरे के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यू विल हैव टू रिमोट हिज रेपोजिटरी इनटू योर डिवाइस. तो स्टार्ट अभी फर्स्ट हम पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं. इनिशियलाइज योर ओन रेपो. हाउ डू यू डू इट? So the command to convert your folder into a Git repo is git init. Write git init, you press enter, and you get a message initialized empty Git repository. Now, as soon as you convert a folder into a Git repository, एक folder होता है, hidden folder होता है जो कि by default इसका नाम होता है .git. वो automatically create हो जाता है. अब आपको पता कैसे चलेगा वो create हुआ? किसी भी फोल्डर के अंदर के आइटम्स को देखने के लिए एक कमांड होता है which is ls, right? So you'll type ls and then when you press enter, आपको अंदर दो फाइल्स है, demo.txt and index.html. तो ये वो फाइल्स है जो कि विजिबल है. अगर हमें हिडन फाइल्स भी देखनी है तो हमें टाइप करना रहता है ls स्पेस -a. जब आप ये टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे एक .git नाम का फोल्डर आ गया. .git folder है and you cannot afford to lose it or delete it somehow, because .git folder में ही git आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि कितने मॉडिफिकेशंस हुए, कितने वर्जन्स हैं, ये सब वो .git folder में ही स्टोर होते हैं. So it is a very important folder, right? Now I'll write a command which is git status, and when I press enter हमें आएगा कि untracked files, and we can see that demo.txt and index.html are in red and they are under untracked files. Git status आपके Git repository के अंदर जो भी फाइल्स है उनका स्टेटस बताएगा आपको. अब आपकी फाइल्स दो स्टेट्स में हो सकती है, either they could be tracked or they could be untracked. Tracked का क्या मतलब होता है? Tracked का मतलब कि Git knows about your files, right? And untracked means that Git has no idea about your files. Now, at this point, I would like to take you to the three-stage architecture of Git. What this basically is that first, जब हम लोग अपनी फाइल को edit करते हैं, right? जब हमने यहाँ पे suppose demo.txt और index.html जो है उसको हमने edit किया, तो हम अभी edit कर रहे हैं फाइल्स को, तो हम अभी वर्किंग डायरेक्टरी में, राइट? और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि इनके साइड में U बना रहा है, U मीन्स अनट्रैक्ड. तो आपका टेक्स्ट एडिटर भी आपको बता देता है कि कौन सी फाइल्स अनट्रैक्ड है. U मीन्स अनट्रैक्ड. अब आप वर्किंग डायरेक्टरी से आपको फर्स्ट अपनी जो फाइल्स है उनको स्टेजिंग एरिया पे भेजना पड़ेगा. स्टेजिंग एरिया इज बेसिकली अ प्लेस टू होल्ड योर फाइल्स बिफोर यू मेक योर कमिट. कमिट का क्या मतलब होता है? कमिट का मतलब कि एज सून एज आप अपने किसी फाइल्स को कमिट करते हो तो आपके प्रोजेक्ट का एक वर्जन क्रिएट हो जाता है. मतलब ये आपका वर्जन 1 है. तो कमिट करने से पहले आपको उनको एक स्टेजिंग एरिया पे भेजना पड़ेगा. स्टेजिंग एरिया कुछ नहीं है. स्टेजिंग एरिया इज जस्ट यू टेलिंग गिट कि हे गिट, आई एम सेंडिंग यू दीज फाइल्स, यू हैव टू प्रिपेयर देम एंड यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर माई नेक्स्ट कमिट. मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं फाइल्स में भेज रहा हूँ, प्रिपेयर देम, ताकि मैं इनको अपने नेक्स्ट वर्जन जो प्रोजेक्ट है उसमें ऐड कर दूँ. ओके, तो स्टेजिंग एरिया तो ये होता है. अब स्टेजिंग एरिया पे ऐड करने के लिए जो कमांड होती है, वर्किंग डायरेक्टरी हम अपनी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में भेजते हैं, तो उसके लिए जो कमांड होती है दैट इज गिट ऐड, राइट? तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे गिट ऐड. गिट ऐड के बाद आपको दो तरीके होते हैं. अगर आप चाहते हो कि सपोज आपके पास 40 फाइल्स है आपके वर्किंग डायरेक्टरी में, पर आप चाहते हो कि आपके फर्स्ट वर्जन में बस उसमें से 20 फाइल्स ही आए, तो आप सिर्फ उन 20 फाइल्स को स्टेजिंग एरिया पे भेजोगे. आप बाकी जो बची 20 है उनको नहीं भेजोगे, उनको वर्किंग डायरेक्टरी में ही रहने दोगे. तो अगर आपको ऐसे केसेस में करना है तब तो आप क्या करोगे कि गिट ऐड, उसके बाद आप उस फाइल का नाम लिख दोगे. सपोज मुझे demo.txt को भेजना है तो मैं बस demo.txt लिख दूंगी.
or there could be there is one other way, that is you can write डॉट मतलब आपके फोल्डर में, आपके रेपोजिटरी में जितनी फाइल्स है आपको सबको स्टेजिंग एरिया में भेजना है, तो आप बस डॉट लिख दोगे। तो मुझे दोनों को भेजना है, तो आई जस्ट राइट डॉट एंड देन आई प्रेस एंटर। राइट, अब अगर मैं गिट स्टेटस लिख के देखूं, तो ये जो फाइल्स पहले रेड में आ रही थी ये अब ग्रीन में आ रही हैं, और यहाँ पे लिखा है चेंजेस टू बी कमिटेड। दैट मीन्स कि अभी फाइनली स्टेजिंग एरिया में आ चुकी हैं दोनों फाइल्स। अब हमें इन्हें कमिट करना है। जैसे हम इसको कमिट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट का फर्स्ट वर्जन तैयार हो जाएगा। ओके, इसको कमिट कैसे करते हैं? कमिट करने के लिए कमांड होता है गिट कमिट। गिट कमिट के बाद आपको स्पेस देनी है, you'll have to write hyphen m and then you'll have to put 2 inverted commas, और उन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको एक मैसेज लिखना है। नाउ मेक श्योर कि आप जो भी मैसेज लिखो दैट इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल एज इन कि आपने उस कमिट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, आप उस मैसेज में उसको क्लियरली बताओ, ताकि बाद में आके अगर कोई दूसरा कोलैबोरेटर आपके इन चेंजेस को देखे, अगर वो आपके प्रीवियस वर्जन को देखना चाहे, तो उसको पता रहेगा कि आपने उसमें क्या चेंजेस किए हैं। राइट, तो सपोज मैंने इसमें क्या किया है, आई हैव एडेड demo.txt and index.html। राइट, तो मैंने ये लिखा एंड देन आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे आएगा एडेड demo.txt एंड index.html। राइट, तो अब ये फाइनली ऐड हो चुकी है मेरे फर्स्ट कमिट में, मतलब मेरे प्रोजेक्ट का फर्स्ट वर्जन तैयार हो गया है जिसमें 2 फाइल्स है, demo.txt एंड index.html। अब अगर मैं git स्टेटस लिखूंगी तो यहाँ पे आएगा nothing to commit, working tree clean। That means I do not have any residual files in directory or in my staging area. All the files in my repository have been committed। Right, अब suppose मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के सेकेंड वर्जन के लिए इसमें एक और फाइल क्रिएट करी एंड आई नेम इट contact.html। राइट, एंड देन आई प्रेस एंटर। तो एक फाइल क्रिएट हो गई। अब इसके आगे यू लिखा आ रहा है, राइट, तो इसका मतलब ये अभी अनट्रैक्ड है क्योंकि हमने नई नई फाइल ऐड करी है। अब मैं इसमें HTML boilerplate ऐड कर दूंगी एंड इफ I'll just add an h1 heading here as well. It says contact me। Right, or maybe I'll add a paragraph which has my email address। ये मैंने एक फाइल बना ली जिस कॉन्टैक्ट मी, एक मैंने नई फाइल बनाई है contact.html, जिसमें मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली है। अब मैं इसको सेव कर दूंगी और अभी इसके आगे यू आ रहा है, राइट, तो अब अगर मैं इसमें गिट स्टेटस लिखती हूँ, यहाँ पे एक और फाइल आ जाएगी आपके पास contact.html जो कि अभी अनट्रैक्ड है। अच्छा, सपोज मैं एक वेबसाइट बना रही हूँ, राइट, आई एम यूजिंग HTML, सो आई एम मेकिंग अ वेबसाइट। अब सपोज आपकी वेबसाइट कभी क्रैश हो गई तो आपके पास एरर लॉग्स भी आएंगे कि आपकी वेबसाइट क्रैश हुई है। सपोज आपके पास एक एरर लॉग आया, उसका नाम है error.log। राइट, और इसमें आपने सपोज इसमें लिखा है कि दिस वेबसाइट crashed on 27th August at 6 p.m. Right, and then you'll press enter। you press save, तो ये सेव हो गया। अब ये भी अनट्रैक्ड फाइल होगा क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक नई फाइल बनाई है, पर आप नहीं चाहते कि कोई भी दूसरा इंसान आपके वेबसाइट के क्रैश लॉग्स को देखे, या सपोज यू हैव सम सीक्रेट फाइल्स यू डोंट वांट टू रिवील, तो आप चाहते हो कि वो गिट उसको ट्रैक ना करे, तो आप क्या करोगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल बाय द नेम .gitignore। gitignore क्या होता है? .gitignore में
आप अब इस फाइल के अंदर उन सारी फाइल्स के नाम लिख दोगे जिनको आप चाहते हो कि गिट इनको इग्नोर कर दे। सपोज मैं चाहती हूँ कि एरर डॉट लॉग को गिट ट्रैक ना करे, तो आई राइट एरर डॉट लॉग इनसाइड इट एंड देन आई सेव। तो आप देखोगे इसके आगे से यू हट गया, राइट। और अगर हम अपने टर्मिनल में भी जाके गिट स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे एरर डॉट लॉग दिखाई नहीं देगा आपको। तो दैट मीन्स कि गिट इग्नोर डॉट गिट इग्नोर नाम से फाइल बनानी है। उसके अंदर जो भी फाइल आप चाहते हो कि गिट इग्नोर कर दे उनके नाम लिखने हैं। अगर आपको फोल्डर लिखना है सपोज कोई सा, तो आप उसके आगे स्लैश लगा दोगे, राइट। तो वो फोल्डर का काम करेगा। पर अभी हमें सिर्फ फाइल ऐड करनी है वाली, तो दैट इज ओके टू, राइट। और अब ठीक है, नाउ आई वांट टू मेक अ सेकंड कमिट। तो मैं क्या करूँगी, पहले मुझे स्टेजिंग एरिया पे ऐड करना पड़ेगा, दीज आर अनट्रैक्ड फाइल्स बिकॉज। तो मैं करूँगी गिट ऐड एंड आई राइट डॉट एंड देन आई प्रेस एंटर। अब ये ऐड हो चुकी है स्टेजिंग एरिया पे। अब मैं डायरेक्ट इनको कमिट कर दूँगी, गिट कमिट हाइफन एम, आई राइट अ मैसेज maybe added git ignore and contact of HTML. I'll press save. Oh, sorry. I'll press enter. तो फाइनली कमिट हो गया, राइट। तो मेरे प्रोजेक्ट का सेकेंड वर्जन भी बन गया। अब सपोज मुझे एक लास्ट वर्जन बनाना है अपने प्रोजेक्ट का। अब इसके आगे से यूँ हट गया, दैट मीन्स कि अब ये कमिट हो चुकी है। अब मुझे एक लास्ट वर्जन बनाना है अपने प्रोजेक्ट का और मैं इसमें सपोज एक नई फाइल ऐड करूँगी about.html। मैंने about.html ऐड करी और इसमें मैंने एक HTML बॉयलर प्लेट डाली पहले तो। राइट, और मैंने इसके अंदर लिखा about H1 about me एंड सपोज मैं एक हॉरिजॉन्टल रूल भी डाल देती हूँ। और अब मैंने इसको सेव कर दिया। तो सिंस यहाँ पे हमें यू आ रहा है तो दैट मीन्स कि हमें इसको पहले तो स्टेजिंग एरिया पे ऐड करना पड़ेगा। तो आई राइट गिट ऐड डॉट then I'll write git commit hyphen m and then I'll write a message added about.html and then I'll press enter. It's finally committed, right? तो ये तो हमने क्या किया कि हमने 3 वर्जन बना लिए अपने प्रोजेक्ट के। अब सपोज हमें देखना है, हमें याद नहीं है कि हमने कितने वर्जन बनाए, हमें हर वर्जन की इंफॉर्मेशन चाहिए अपने प्रोजेक्ट की। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कमांड विच इज गिट लॉग। गिट लॉग लिखने के बाद विल प्रेस एंटर एंड यहाँ पे हमारा जो जितने भी कमेंट्स बनाए अभी तक हमने उन सब की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यू कैन सी यहाँ पे ऑथर भी आ रहा है कि किसने करा है, यहाँ पे डेट आ रहा है, मतलब डेट आ रही है कि कितनी डेट को करा था, किसने करा था ये कमेंट, और कमेंट मैसेज भी आ रहा है हमारा कि हमने क्या किया है इस कमेंट में, राइट। तो हमने 3 कमेंट किए तो अभी तक 3 कमेंट्स आ रहे हैं। वी कैन सी हेड हियर। हेड क्या होता है, हेड एक पॉइंटर होता है जो कि बताता है कि आप अभी किस ब्रांच पे हो। ब्रांचिंग का कंसेप्ट हम अभी आगे पढ़ेंगे इस सेशन में। अभी के लिए हमें देखना है कि अच्छा ये हमें 3 कमिट्स पता चल गए। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि वी कैन इजीली मूव फ्रॉम आवर वर्जन 20 टू वर्जन 10 ऑफ आवर प्रोजेक्ट, तो हम वो कैसे करेंगे, हाउ डू वी ट्रेवल बैक एंड फोर्थ आवर वर्जन। तो उसके लिए कमांड होती है चेकआउट कमांड। आपको क्या करना है, फर्स्ट तो आप जिस भी कमिट में आपको जाना है, आप उस कमिट की ये कमिट आईडी होती है, इसको कॉपी कर लोगे। सपोज ये हमारा रिसेंट कमिट है, हमें जाना है हमारे फर्स्ट कमिट में, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी आईडी जो है उसको कॉपी कर लेंगे। देन आई राइट माय कमांड गिट चेकआउट, हमारी कमांड है, और फिर हम यहाँ पे इस आईडी को पेस्ट कर देंगे।
तो अब यहाँ पे हम फाइनली हमारे उसमें आ गए हैं फर्स्ट कमिट में। कैसे पता चलेगा हमें हम फर्स्ट कमिट में आ गए? हम जाके यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने फर्स्ट कमिट में HTML, यहाँ पे लिखा भी है मैंने मैसेज। फर्स्ट कमिट में हमने demo.txt और index.html बनाया था, राइट? हमें बस वही दो फाइल यहाँ पे दिख रही है, बाकी जो भी फाइल्स है। error.log क्यों दिख रहा है? क्योंकि error.log को ट्रैक नहीं कर रहा था वो, राइट? और contact.html, .gitignore, ये सब डिलीटेड आ रहे हैं इनके ऊपर। दैट मीन्स दैट दे आर नॉट हियर इन दिस वर्जन। तो दैट जस्ट शोज कि हम लोग अपने फर्स्ट कमिट में आ गए। अब सपोज हमें दोबारा अपने रिसेंट कमिट में वापस जाना है, हमें मतलब हमारा जो थर्ड कमिट है उसमें वापस जाना है, तो हम क्या करेंगे? विल राइट गेट चेकआउट master and then I'll press enter। तो अब मैं अपने रिसेंट कमिट में आ गई हूँ। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जाके देखते हैं हमारी से आ गई, राइट? तो ये तो हो गया कि हाउ डू यू मूव। अब सपोज यहाँ पे अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे गेट चेकआउट मास्टर क्या लिखा। मास्टर क्या होता है? माय मेन ब्रांच। अब आएगा गेट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फीचर ऑफ गेट, व्हिच इज ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या होता है? माइंड यू, ब्रांचिंग इज लाइक वन ऑफ द किलर फीचर ऑफ गिट बिकॉज इट इज वेरी लाइट वेट एंड वेरी क्विक इन गिट। बाकी वर्जन कंट्रोल सिस्टम में इतनी लाइट नहीं होती ब्रांचिंग जितनी गिट में होती है, इसलिए गिट काफी पॉपुलर भी है एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो ब्रांचिंग होता क्या है? सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, राइट? और आपके साथ आपके प्रोजेक्ट में दो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो आपने पर्सन वन को तो बोला कि तुम एक काम करो, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ एंड यू विल हैव टू ऐड एनिमेशन इन माय वेबसाइट। तो पर्सन वन को आपने एनिमेशन डालने का काम दे दिया एंड पर्सन टू को आपने बोला कि यू विल हैव टू मेक माय वेबसाइट रेस्पॉन्सिव, राइट? तो आपने दोनों को काम दे दिया। अब क्या, पर यू आर नॉट वेरी श्योर कि वो दोनों लोग सही से काम करेंगे कि नहीं। तो आप नहीं चाहते कि वो कुछ भी कोड बना के आपकी मेन वेबसाइट पे डाल दें और आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाए, राइट? तो आप क्या करोगे कि आप एक ब्रांच बनाओगे, दोनों के लिए एक एक ब्रांच बना दोगे। ब्रांचिंग का क्या मतलब होता है कि आप सपोज इस पॉइंट पे, अभी इस ग्रीन बॉक्स पे, इसके पहले आपने इतने कमिट्स कर दिए हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब आप इस पॉइंट पे और आपने उनको हायर किया है, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ से ब्रांच निकालोगे। ब्रांच निकालने का क्या मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच वन में इस पॉइंट के पहले जितने भी कमिट्स थे वो सब इंक्लूडेड रहेंगे, पर जो पर्सन वन आपके एनिमेशन का काम कर रहा है वो इसमें फर्दर जो भी कमिट करेगा दैट विल नॉट अफेक्ट योर मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच आपकी मेन ब्रांच होती है जो कि बेसिकली प्रोडक्शन में जाती है, मतलब दिस इज योर एक्चुअल वेबसाइट जो कि सब देख पाते हैं, राइट? तो ये इसमें जो भी कमिट करेगा वो आपकी मास्टर ब्रांच को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे? उसने पूरे कमिट्स कर दिए, उसने बना लिया, उसके बाद आप उसको चेक करोगे सही से चल रहा है कि नहीं। अगर आप, इफ यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ ये अच्छा चल रहा है एंड आई वांट दीज फीचर्स टू बी देयर इन माय ओरिजिनल वेबसाइट, तो आप क्या करोगे? इस ब्रांच को आप अपनी मास्टर ब्रांच में मर्ज कर लोगे। मर्जिंग का भी कंसेप्ट, मतलब मर्जिंग कैसे करते हैं ये भी पता करेंगे। और सपोज सेकंड जिसको आपने रिस्पॉन्सिव बनाने का काम दिया था, सेकंड पर्सन को, आपने उसके लिए भी एक ब्रांच क्रिएट कर दी। तो सिमिलरली जैसे इस ब्रांच में था, ब्रांच नंबर 2 में भी इस पॉइंट के पहले जितने भी कमिट्स हैं वो सब इंक्लूडेड रहेंगे, पर इस ब्रांच में फर्दर जो भी कमिट्स करेगा वो इंसान, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, राइट? तो दिस इज व्हाट ब्रांचिंग इज एंड दिस बेसिकली यही कारण है कि ब्रांचिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंसेप्ट है और काफ़ी हेल्पफुल है। बिकॉज एक बड़े से प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब, मतलब अगर सब लोग आपकी मेन प्रोजेक्ट में ही वो सारा कोड ऐड करते जाएंगे तो दैट कुड लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड बग्स। इसलिए सबकी एक पर्टिकुलर ब्रांच से देते हैं। जितनी भी ब्रांचेस बना सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट में, कोई मनाही नहीं होती। तो सबको अपनी अपनी ब्रांचेस देते हैं, दे वर्क ऑन देयर पर्टिकुलर ब्रांचेस, और किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है किसी ब्रांच में, राइट? तो ये तो हो गया कि ब्रांचिंग होती क्या है। अब ब्रांचिंग
करते कैसे हैं। तो ब्रांचिंग करते कैसे पता करने के लिए हम दोबारा अपने उसमें जाते हैं टर्मिनल में, एंड देन here we'll write a command which is git branch. ब्रांच से क्या होता है, बेसिकली आपके प्रोजेक्ट में अभी कितनी एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं वो पता चलती है। तो यू राइट गिट ब्रांच, यू प्रेस एंटर, तो आपके पास आएगा मास्टर and it is in green. There is a star in front of master, which means that you are currently in your master branch, right? And you just have one branch in your entire project. Now if you want to create one more branch, say you want to create an animation branch for the guy number 1, so you write git branch and then you'll write the branch name. तो मुझे animation नाम से चाहिए अपनी branch, so I'll write animation and I'll press enter. तो अब मेरी ब्रांच क्रिएट हो चुकी है. हाउ विल आई नो? आप क्या करोगे, गेट ब्रांच लिखोगे to like know the number of branches. You can see there are now 2 branches in your project. First is animation, second is master, and master is in green with a star in front, which means that you are currently in master, right? Now if you want to go and check out the animation branch, how will you do it? You will again use the checkout command, जो कि हमने commits के बीच में travel करने के लिए use करी थी, हम वही command use करेंगे. तो आप लिखोगे git checkout and then you'll write the branch name. आपको जिस branch के अंदर जाना है, suppose मुझे animation branch के अंदर जाना है, so I'll write animation and then I'll press enter. Right now अगर मैं git branch लिखती हूँ, I'm inside animation branch क्योंकि अब ये green में आ रही है, right? अब suppose मैंने लिखा git log, तो यहाँ पे head is pointing towards animation right now, right? तो head मैंने पहले भी बताया था, head is a pointer which points towards the now. अब suppose हमने animation branch में हम write अभी, तो अब जाएंगे HTML में और हम यहाँ पे कुछ changes कर देंगे इस फाइल में. Suppose मैंने एक paragraph add किया with lorem ipsum, right? मैंने ये add कर दिया इसमें और I save it. और सपोज मैंने एक कोई और फाइल भी ऐड कर दी. अच्छा यहाँ पे m आ रहा है, m मींस इट इज मॉडिफाइड. मॉडिफाइड मतलब कि git is tracking this file, changes है but it is modified. ओके, तो सपोज इसमें कोई एक और फाइल ऐड कर दी. सपोज आई wrote error1.log, right? and then I'll press enter और मैंने लिखा this is a new error file. and I'll save it. Okay, तो मैंने ये 2 चेंजेस किए. मैंने क्या क्या चेंजेस किए? मैंने index.html में एक lorem ipsum का पैराग्राफ ऐड किया है और मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी है which is error1.log. अब मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी और मैं इन दोनों चेंजेस को कमिट कर दूंगी. बट बिफोर आई कमिट आई नीड टू ऐड देम टू द staging area, right? So I'll write git add full stop and then I'll press enter और अब मैं कमिट कर दूंगी. First commit inside animation branch and then I'll press enter. तो अब ये कमिट हो चुका है, राइट? तो अब ये हमारा एनिमेशन ब्रांच में हमने कमिट किया है, रिमेंबर. अब हम अगर ऐसा करें कि हम दोबारा अपनी मास्टर ब्रांच में जाए टू प्रूव कि हमारी मास्टर ब्रांच को कुछ नहीं हुआ होगा, अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए होंगे उसमें, हम क्या करेंगे, हम दोबारा अपनी मास्टर ब्रांच में जाएंगे. तो ब्रांच में ट्रेवल करने के लिए सेम होती है कमांड git checkout and then you'll write master and then when you press enter अब आप मास्टर ब्रांच में आ गए, आपके पास मैसेज आ गया स्विच टू ब्रांच मास्टर, राइट? और अब आप इधर आओगे, you can see error1.log is deleted, this file doesn't exist anymore. और HTML index.html में आएंगे तो यहाँ से वो पैराग्राफ भी हट चुका है. So that just proves कि ब्रांचिंग से क्या होता है कि आपकी ब्रांचिंग में आप जो भी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में आप जो भी कमिट करते हो वो बाकी ब्रांचेस को अफेक्ट नहीं करता, राइट? So this is what branching is. Now suppose
अब आपने उसने कर दिया आपकी उसमें एनिमेशन वाले गाय ने ही मेड सम चेंजेस इन हिज ब्रांच एंड यू लाइक द चेंजेस। तो आपने बोला कि अच्छा ठीक है तुम्हारे चेंजेस अच्छे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल वेबसाइट में भी हो। What you will do is you will merge that branch into your master branch. How do you merge that branch? Suppose आपको इस केस में हमें क्या करना है, हमें एनिमेशन ब्रांच को अपनी मास्टर ब्रांच में मर्ज करना है, राइट? So to merge animation branch into master branch, first you have to come to master branch. तो अभी हम master branch में हैं, कैसे पता? यहाँ पे master लिखा हुआ आता है। अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप git branch लिख सकते हो, उसमें भी पता चल जाता है। यहाँ पे हम animation branch में थे तो साइड में animation लिखा हुआ आ रहा था। तो अभी हम master branch में हैं, अब हमें merge करना है, तो merge के लिए command होती है git merge and then the branch name. तो branch name क्या है? Animation. You'll write animation and then you'll press enter. तो फाइनली आपके जो मास्टर ब्रांच है उसमें आपकी एनिमेशन ब्रांच मर्ज हो गई है। यहाँ पे भी दिख रहा है index.html में पैराग्राफ ऐड हो गया दोबारा से और एरर 1.log के आगे से डिलीटेड हट गया, मतलब ये भी इसमें ऐड हो गई है फाइल, राइट? अब हम ब्रांच डिलीट करना चाहते हैं। व्हाई वुड वी वांट टू डिलीट अ ब्रांच? सपोज आपने दो लोगों को काम दिया था ना, यहाँ पे आपने पहले वाले ने तो अच्छा काम किया एनिमेशन में, आपने बोला कि बहुत अच्छा, अब मैं इसको मर्ज कर लूंगा। मर्ज करने के बाद ब्रांच का कोई काम नहीं रह गया ना, आपने उसको मर्ज कर लिया, उसकी सारी फीचर्स आपके मेन ब्रांच में आ गया, अब उस ब्रांच का कोई काम नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर दोगे। और दूसरे इंसान ने काम सही से नहीं किया, देयर वर अ लॉट ऑफ बग्स इन हिज कोड, तो आपने बोला कि तुम एक काम करो, इसको मैं मर्ज नहीं करूंगा, आई जस्ट डिलीट इट, so you'll delete that branch too. So how do you delete a branch in Git? To delete a branch in Git, there's a command which is git branch -d and then the branch name. तो मुझे एनिमेशन ब्रांच, एक ही ब्रांच थी मेरे पास, राइट? तो मुझे एनिमेशन ब्रांच डिलीट करनी है। I'll write animation and then I'll press enter. तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा डिलीटेड ब्रांच एनिमेशन। अब अगर मैं गिट ब्रांच लिखती हूँ तो इसमें बस एक ही ब्रांच आएगी हमारे पास, दैट इज मास्टर, राइट? तब हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ब्रांच बची है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गिट। अब हम आते हैं कि गिटहब क्या होता है। तो गिट तो हमें पता चल गया कि गिट क्या होता है, तो हम आते हैं कि गिटहब क्या होता है। तो बेसिकली गिटहब सबसे पहले तो Khushbu, just 1 second, like I can clear Ashi's doubt and then we can proceed, right? या श्योर। Okay, so Ashi is asking why do we need a staging area? Okay, so consider that you have a very extensive project that has many files, and you want to, just keep some of files, like you just want to retain some of your files and you don't want them to be committed. So what you do is you just name the files, like when we do git add, we just name the files that we need that we need in our staging area so that it can be committed. And about there are more uses to it. For example, there's a for example, you are working on a large commit, and then there are multiple like you are working on a large issue, and there can be multiple commits. For example, for example, if I am asked to develop a about page in website, so about page can be split into parts, like adding image and adding content. So so what we can do using staging area is we can just split into this into smaller parts, and then we can commit this. One more use is for example, you have made changes, like for example, you have made changes in a file, and like if you commit it directly, the changes, or like if we were able to commit it directly, for example, we commit a mistake, we have made a mistake and we want to review. So staging area gives you a moment to just check your thing. Like for example, I'm building an about page, and the image was supposed to be on the left side, but I designed the image to be on the right side.
So when I commit this, like for example, when I commit this like or add in the staging area, I can review my changes, whatever changes I have done, if they are correct or not. So yes, this is what we need staging area for. ओके, आई Okay. थिंक आशी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. ओके, नाइस. Okay, so let's move on to GitHub now that we know about what Git is. So GitHub basically, GitHub and Git are two different things. So काफी लोगों को लगता है कि Git and GitHub are the Git is a version control system and GitHub is a cloud-based hosting service that lets you manage your Git repository. Now what that means is, तो पहले तो हम आते हैं एक हमारे डायग्राम पे. This is basically what actually Git is. Git is a version control, yes, that we know. But to be more precise, Git is a distributed version control system, right? So what that means is, आपके पास एक रेपोजिटरी रहेगी, मेन सेंट्रल रेपोजिटरी. सेंट्रल क्यों? क्योंकि ये सर्वर पे है. और फिर हैं आपके यहाँ जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं आपके प्रोजेक्ट में, उनकी एक लोकल रेपोजिटरी रहेगी, सबकी इंडिविजुअल. सपोज आपके पास 3 यूजर्स हैं तो उनके पास आपके मतलब 3 लोकल रेपोजिटरी हैं इस डायग्राम में, राइट? वो क्या करेंगे अपनी लोकल रेपोजिटरी में? सबसे पहले वो अपनी जो सेंट्रल रेपोजिटरी है उससे कोड लेंगे अपनी लोकल रेपोजिटरी में. कैसे लेंगे? दे हैव टू पुल द कोड from the server or the central repository, right? Then they'll make some changes, they'll commit those changes to their local repository, and then when they're like finally committed all the changes and they are satisfied, they'll push those changes to your central repository. That is how it works. Why do we need a central repository? क्योंकि आपकी अभी हम जिस repository में काम कर रहे थे, that is a local repository, that is your computer, right? बाकी लोग जो हैं वो आपकी इस रेपोजिटरी को नहीं देख पाएंगे. टू कोलैबोरेट विद दोज पीपल, आप चाहते हो कि आपका जो कोड है वो सबको मतलब अवेलेबल हो, राइट? तो उसके लिए आपको एक सर्वर पे डालना पड़ेगा आपका कोड. तो उस सर्वर को ही हम सेंट्रल रेपोजिटरी कहते हैं. और बेसिकली गिटहब जो होता है वो हमें वो सेंट्रल रेपोजिटरी प्रोवाइड करता है, right? So that is what GitHub is. Also, on a side note, GitHub can also be used as a portfolio to show that you are an active developer. कभी कभार ऐसा होता है कि रिक्रूटर्स आपके GitHub प्रोफाइल देख के आपको कर देते हैं रिक्रूटमेंट के लिए. So that is also a thing, and that is also a reason why you should maintain your GitHub profile. Okay, so let's move on. ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है. आई साइन इन. अब मुझे इस गिटहब पे जाके एक सेंट्रल रेपोजिटरी बनानी है सपोज, राइट? तो I'll do is I'll click on new and here we are. यहाँ पे मुझे एक रेपोजिटरी का नेम देना है, तो I'll just name it जो मैंने पहले दिया था अपनी लोकल रेपोजिटरी को, which is git project, राइट? यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो अपनी रेपोजिटरी का, मैं भी नहीं डाल रही. दिस इज पब्लिक एंड प्राइवेट. अगर आप चाहते हो कि एनीवन अराउंड द वर्ल्ड हैज एक्सेस टू योर कोड तो आप उसको पब्लिक करो. अगर आप चाहते हो कि कुछ गिने चुने लोग जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो बस दे हैव एक्सेस टू योर कोड, यू कैन मेक इट प्राइवेट. मैं भी पब्लिक रहने दूंगी. और अभी ये 3 चीजों को इग्नोर करते हैं एंड देन विल क्रिएट अ रेपोजिटरी. ओके, ग्रेट. नाउ अ रेपोजिटरी इज क्रिएटेड. अब यहाँ पे काफी ऑप्शंस आएंगे आपके पास. फर्स्ट इज create a new repository on the command line. Second is push an existing repository from the command line. अब आपको बिल्कुल स्क्रैच से एक न्यू रेपो बनानी है तो आप इन कोड्स को अपने गिट बैश टर्मिनल में टाइप कर सकते हो वन बाय वन. पर अपने पास ऑलरेडी अभी इस केस में एक रेपो बनी हुई है, राइट? वी हैव अ लोकल रेपो. हमें उसको सेंट्रल रेपोजिटरी में पुश करना है. तो हम क्या करेंगे? हम ये वाले सेट ऑफ कमांड्स है इनको यूज करेंगे. तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ and I'll paste it here.
तो व्हाट दिस सेज इज git remote add origin, मतलब हम इस origin पे इस repo को push करना चाहते हैं, right? तो I'll write this and then I'll press enter. Okay, तो अब next command पे जाते हैं. Next command is git branch main, right? तो यहाँ पे ये मेन आ रहा है, बट सिंस हमारी जो मेन ब्रांच है वो मास्टर है, राइट? तो हम मेन नहीं लिखेंगे, हम मास्टर लिखेंगे. आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके मेन है कि मास्टर. अगर मास्टर है तो you'll have to write master. Okay, now you'll press enter. और लास्ट कमांड भी टाइप कर देते हैं. This is the push command. This is basically what will push your code to the central repo. और यहाँ पे भी मेन है तो इसको मास्टर कर देंगे. And then I'll press enter. तो ये थोड़ा टाइम लेगा कुछ करने में. Okay, so my code is finally on the central repository right now. अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार. Right, तो मेरा पूरा कोड यहाँ पे आ चुका है. I've pushed my entire code from my local repository to my central repository. Okay, cool. So that is how you push a code. अब हम आते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन पे. ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता क्या है पहले तो बेसिकली काफ़ी ओपन सोर्स एप्लीकेशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो. मतलब यू कैन मे बी देयर आर सम इश्यूज and you want to fix those issues, right? So you can do an open source contribution in that as well. You can maybe add a new feature. तो काफ़ी चीज़ें होती है ऐसी. तो सपोज हमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना है तो पहले तो मैं अपनी GDSC की जो प्रोफाइल है उस पर जाऊँगी. GDSC का जो प्रोफाइल है उसमें हमने ऑलरेडी एक रेपो बना रखी है बाय द नेम गिटहब डेमो. आज का हमें सेशन कंडक्ट कराना था. तो हियर इट इज, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम इस कोड को कॉपी नहीं करेंगे. पहले तो वी वांट टू फोर्क इट, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस रेपो को फोर्क करेंगे. फोर्क करने से क्या होगा कि इस रेपोजिटरी का जो एक कॉपी है वो आपकी सेंट्रल रेपोजिटरी में बन जाएगी. तो आपने क्या किया, इसको फोर्क किया और मुझे अपने अकाउंट में फोर्क करना है, राइट? मैं यहाँ पे क्लिक और ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस अकाउंट में फोर्क हुई है, फोर्क फ्रॉम GDSC RTO. ओके, तो कहाँ से फोर्क किया ये भी लिखा हुआ आ रहा है. अब सेकंड स्टेप क्या होता है, फोर्क करने के बाद आपको इसको क्लोन करना पड़ेगा. तो क्लोन करने के लिए हमें दोबारा अपने टर्मिनल में जाना पड़ेगा. अब मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी के अंदर इसको क्लोन नहीं करना चाहती. आई वांट टू मेक अ न्यू रेपोजिटरी. तो मैं क्या करूँगी, मैं बैक जाऊँगी. अपने गिट प्रोजेक्ट के अंदर है ना, यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप पे जाना है वापस. तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cd डॉट डॉट बैक का काम करते हैं. क्या गिट प्रोजेक्ट से बैक होकर डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो राइट डॉट डॉट आप एंटर दबाओ, क्लोन इट. तो यहाँ पे to copy this code पे जाके you'll have to copy this HTTPS link, okay, and clone, and then you'll paste this link here and you'll press enter. Okay, repository has finally been cloned, right? अब मैं यहाँ पे एक बार ls लिख के देखती हूँ. GitHub डेमो, ये एक फोल्डर आ गया है यहाँ पे एज यू कैन सी, राइट, मेरे डेस्कटॉप पे. तो अब मैं इसके अंदर मूव करूंगी, cd GitHub डेमो, राइट. अब मैं इस वाले फोल्डर को यहाँ पे खोल लूंगी.
एंड हियर क्या है, और इसमें कुछ फाइल्स है, रीडमी, लाइसेंस, index.html, इसमें काफ़ी सारा काम हो रखा है। तो सपोज मुझे index.html में कुछ चेंज करना है, राइट? तो आज ज़्यादा कुछ मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था, जस्ट ऐड एन हेड and I'll write my first contribution. I'll hit save. Also यही काम करूंगी। यहाँ पे जाके लिख दिया my first contribution। ये यहाँ पे दिखेगा एक्चुअली सामने से। Save. Right. So I change this. Now what I have to do is मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं लिखूंगी git. So these are like two modified files. अब मुझे इन्हें पहले staging area पे भेजना पड़ेगा git add and then I'll commit it. Again the same message. So finally come now I have to write the मतलब अभी commit हो चुके हैं मेरी local repo में, अब मुझे इनको अभी central repo में वो करना है push, तो I'll have to write git और ये पुश हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे जाके हाँ, यहाँ पे माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ आ रहा है, और अगर HTML में भी जाएंगे तो यहाँ पे एक h1 टैग आएगा माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। मैंने जो चेंजेस किए थे वो इसमें ऐड हो गए हैं। फर्स्ट आई मेड these committed those changes in my local repo and then I pushed these changes to my central repo. पर मेरे अकाउंट में हुआ है ये, राइट? एक्चुअल जीडीएसी का अकाउंट है, उसमें भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। जो न्यू टैब में ओपन करके भी देख लेते हैं अपन, है ना? ऐसा कुछ नहीं लिखा आ रहा माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। index.html में भी सेम होगा, कुछ नहीं, नथिंग, राइट? तो अब हम अपनी रिपोजिटरी में तो नहीं करना चाह रहे थे चेंज, हम चाह रहे थे कि हम इनके उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो हमें क्या करना, we'll have to make a full, हमें इसका जो कि ओनर रिपोजिटरी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। हाउ डू मेक अ पुल रिक्वेस्ट? यू गो टू योर, मतलब आपने जो जो रिपोजिटरी बनाई है उसमें आप जाओगे कंट्रीब्यूट में, and then you will click on open pull request. राइट, एंड देन आप यहाँ पे चेक कर लोगे पहले तो यहाँ पे माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन एंड माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। तो पुल रिक्वेस्ट, और इसको यहाँ पे एक और बार आप कर सकते हो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। बेसिकली मेरी पुल रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट, अब जीडीएससी के जो भी ओनर हैं उनके पास ये रिक्वेस्ट आ चुकी होगी, उनको उनके अकाउंट में दिख रहा होगा, एंड देन changes that I've made, they'll merge those changes in their original code. So yeah, that's about Git and GitHub. And if you have any doubts, ask away in the chat box.
If you want, we can also share a PDF with all the commands that Khushbu just discussed, and we can also share the PPT that she presented. Like you can just write in the chat if you want. Okay, so I guess there are no doubts as of now. And should you have any doubts, you can always text us, text me, text Khushbu, anyone. We'll try our best to help you out. So it's like you can always ask anything. GDSC is for helping you only. And thank you everyone for joining. It was a great session, Khushbu. And uh, if you want to share anything, like anyone uh, anything or ask anything, you can do it right here in the chat. Okay, I guess like we should end the meet. Pasi, thank you so much. Hope you enjoyed the session and it was helpful in some way or the other. We'll see you at our next session. Yeah, thank you, Miss Pia. Okay, so goodbye everyone. Take care. Thank you, Anjali. Bye, everyone. Thank you for joining us today again. Hope this session was helpful. Bye bye.